Hello dear students, today we are going to learn how to create a blogging site using Shopify. So first of all we are going to perform the sign up process. In that we have to add our email address and the password, and after that the windows come, enter your shop details. Here we have to write the name. So here I am writing Tapasya, and after that I am adding JCRC, and then we have to add our shop name. So here I am writing my own name as a shop name. The one thing that you have to note, when we are writing our shop name, it will generate the URL. URL is a unique address, so the name of the shop should be unique. So here because Tapasya Sharma is already existing in the Shopify, that's why I am giving the unique name and adding some number to make my shop name unique. After that, click on continue. Now our first demand is to choose the shop theme according our niche. जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी शॉप थीम चूज़ करनी है. सो क्लिक ऑन शॉप थीम. Here we have various theme library and choose the theme library according to the subject. So suppose if I am going to make a website on F&B, so I select the F&B and I randomly pick any theme which I like. But suppose if I want to make a website on the subject sports, fitness and outdoors, so here we have lots of theme, so we can choose any one of the theme. After that we have to click on apply theme and then yes, apply it. So the theme is applied now. Then we have to create our logo and white logo. So for that we have to go to the shop profile. We have two options. The first option, we can create our logo using Canva and upload the image over here. And the second option, we can create the logo. Click on create logo. Here I am choosing the white color as a back color and the text color is black and the back color is white. And the logo is a short icon of the company and the white logo is a detailed one. तो यहाँ पर भी मैं logo create करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर T और S लिख रही हूँ as my logo. And for white logo I'm going to write my full name. After that we have to click on save. Then again we have to click on save. So finally the logo and white logo should be created for our website. And after that we have to go to the shop theme. अब हमें शॉप थीम पर जाना है, बिकॉज वेबसाइट आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस. वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है. तो हमारे पास शॉपिफाई में ब्लॉगिंग के लिए प्री डिफाइंड कंपोनेंट या प्री डिफाइंड थीम अवेलेबल नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा ब्लॉग का और इंटरनल ब्लॉग का. इंटरनल ब्लॉग में हम लोग डालेंगे अपने सारे ब्लॉग्स और ब्लॉग में हम लोग ब्लॉग कंपोनेंट ऐड करेंगे, दैट इज़ ब्लॉग टेक्स्ट, और फिर उसमें URL कॉपी कर देंगे. तो अभी जब हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. तो गो टू द पेज, शॉप थीम पर जाके हमें पेज पर जाना है और उस पर हमने ऐड पेज करना है. लिंक टेक्स्ट पे हमें पेज का नाम लिखना होता है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द पेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ इंटरनल ब्लॉग. This is a link URL, so I am writing internal blog again over here. Open page in existing tab. So the parent of the internal blog is home. So parent page is home, and here we have to select the link position none. Here we have 4 link position. Both means it displays on header as well as footer. None means it couldn't display on header and footer. एक होता है हेडर मेन्यू जो सिर्फ हेडर पर दिखाई देगा और एक होता है फुटर मेन्यू जो सिर्फ फुटर पर दिखाई देगा. आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द SEO टाइटल, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक द वेबसाइट एंड माई सब्जेक्ट इज़ हेल्थ. सो हियर आई एम राइटिंग द कीवर्ड हेल्थ एंड फिटनेस.
आफ्टर दैट यू हैव टू डू सेव। तो आप देख पा रहे हैं कि इंटरनल ब्लॉग का एक पेज क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद वी हैव टू अगेन डू द ऐड पेज। वापस ऐड पेज पर क्लिक कीजिए। अब हमें क्या करना है, इंटरनल ब्लॉग के अंदर हमारे ब्लॉग्स लिखने हैं। जो हमारा ब्लॉग कंटेंट है वो सारा इंटरनल ब्लॉग्स के अंदर पेजेस, ब्लॉग पेजेस बना के लिखा जाएगा। तो सपोज़ मेरा पहला हेल्थ एंड फिटनेस है, फिटनेस पेज का नाम है फिटनेस फ्रीक। पहला ब्लॉग मैं लिख रही हूँ फिटनेस फ्रीक पर, और यूआरएल में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ब्लॉग 1। इस तरह से आपको यहाँ पर मल्टीपल पेज बना के और अपना ब्लॉग कंटेंट ऐड करना होता है। तो पहला मैंने फिटनेस फ्रीक बनाया, सेकंड में कोई और टॉपिक सेलेक्ट करके तो उसका यहाँ पर लिंक यूआरएल में फिर ब्लॉग 2 दूंगी। इस तरह से मुझे चेंज करना होता है। अब पेरेंट पेज मेरे ब्लॉग्स का रहेगा इंटरनल ब्लॉग। सो आई हैव टू सेलेक्ट द इंटरनल ब्लॉग, लिंक पोजिशन शुड बी नन, देन सेव। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि इंटरनल ब्लॉग के नीचे आ रहा है फिटनेस फ्रीक। सो फिटनेस फ्रीक इज़ अ चाइल्ड ऑफ द इंटरनल ब्लॉग, क्योंकि फिटनेस फ्रीक का पेरेंट कौन है, इंटरनल ब्लॉग है। ठीक है, अब मैंने फिटनेस फ्रीक क्रिएट कर लिया पेज। अब फिटनेस फ्रीक पेज में मुझे 2 कंपोनेंट ऐड करने रहते हैं। पहला कंपोनेंट है स्मॉल बैनर, मुझे इसमें बैनर ऐड करना है। बैनर मतलब इमेजेस डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक पे मैं यहाँ पर अपना टाइटल डालूंगी सबसे पहले। तो मैं मेरा टाइटल वही डाल रही हूँ, फिटनेस फ्रीक, और टेक्स्ट में मैं अपना ब्लॉग कंटेंट डालूंगी। यहाँ पर आएगा ब्लॉग कंटेंट। ठीक है, मतलब आप जो चीज़ ब्लॉग पर लिखना चाहते हो, फिटनेस फ्रीक जैसे मेरा टाइटल है, तो मैं इस पर जो ब्लॉग कंटेंट लिखना चाहती हूँ वो ब्लॉग कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वापस से ऐड पेज करना है और ब्लॉग्स नाम का एक पेज बनाना है। लिंक यूआरएल में ब्लॉग्स दे रही हूँ। ब्लॉग्स का पेरेंट पेज होम ही रहेगा, तो यहाँ पर होम ही रहने देना। लिंक पोजीशन ध्यान रखना, ब्लॉग्स में जो लिंक पोजीशन है वो बोथ आएगी, इंटरनल ब्लॉग में नन आएगी। और इस तरह से मैं इसको सेव कर दूँगी। फिर उसके बाद जो ब्लॉग्स है उस पेज में मुझे कंपोनेंट ऐड करना है। तो कौन सा कंपोनेंट ऐड करूँगी मैं, ब्लॉग टेक्स्ट। मैं यहाँ पर सर्च करूँगी ब्लॉग टेक्स्ट। अगर मैं फर्स्ट ब्लॉग ले रही हूँ तो उसके लिए मैंने राइट इमेज ले लिया, ब्लॉग टेक्स्ट राइट इमेज। अगर मैं सेकंड ब्लॉग ले रही हूँ तो फिर मैं उसके लिए कंपोनेंट ऐड करूँगी ब्लॉग टेक्स्ट लेफ्ट इमेज। तो अभी हाल फिलहाल मैं फर्स्ट ब्लॉग ले रही हूँ तो इसलिए मैंने राइट इमेज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे इमेज ऐड कर देनी, बैनर ऐड हो जाएगा। यहाँ मेरा ब्लॉग टाइटल आ जाएगा। मेरा ब्लॉग टाइटल है फिटनेस फ्रीक। पब्लिश डेट डाल देंगे, तो मैं आज की ही सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ ना स्मॉल कैप्शन डालना होता है ब्लॉग के बारे में, एक स्मॉल कैप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लॉग है वो इंटरनल ब्लॉग के अंदर है। ठीक है, तो आपने देखा था इंटरनल ब्लॉग का भी मैंने लिंक पोजीशन नन कर दिया, ना तो हेडर पर दिखाई दे ना फुटर पर दिखाई दे। और फिर जो मैंने ब्लॉग बनाया फिटनेस फ्रीक का, उसका भी मैंने लिंक पोजीशन नन कर दिया, ना तो हेडर पर दिखाई देगा ना फुटर पर दिखाई देगा। और मेरा ब्लॉग कंटेंट है तो मेरे ब्लॉग में ही, मतलब इंटरनल ब्लॉग में, तो वो तो दिखाई दे नहीं रहा है हेडर और फुटर में। तो अब यूज़र एक्सेस कैसे करेगा? तो उस केस में क्या करना है हमें कि जो उस पेज का मेरा यूआरएल था ना, वो मुझे यहाँ कॉपी करना है इस जगह पर। ठीक है, तो वो कैसे कॉपी होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फिटनेस फ्रीक पर गए आप, फिटनेस फ्रीक पर आपको करना है प्रीव्यू पेज। फिटनेस फ्रीक वो आपका ब्लॉग पेज है जिसमें आपने ब्लॉग लिखा था, तो उस पर आपको एक बार प्रीव्यू पेज करना है। प्रीव्यू पेज करेंगे तो ये ऊपर आपका ना यूआरएल आ जाएगा। इस यूआरएल को कर लेना है आपने कॉपी, ये मेरे ब्लॉग का यूआरएल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वापस जाना है आपके ब्लॉग्स में। ब्लॉग्स में जो आपने ब्लॉग टेक्स्ट कंपोनेंट ऐड किया था ना, उसके एडिट सेक्शन पर जाके आप यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें बनाने हैं हमारे ब्लॉग पेजेस। जब हम लोग प्रीव्यू शॉप करके देखेंगे इट इज स्लो।
जब हम लोग प्रीव्यू शॉप करके देखेंगे तो हमें ब्लॉग्स दिखाई देगा हेडर पर। नेट कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से मैं प्रीव्यू शॉप नहीं कर पा रही, लेकिन इस तरह से हमें ब्लॉग पेज क्रिएट करना है।